Hi everyone, this is Janesh Huda here and welcome to our video of economics. Today we are going to see our chapter number 1, that is Introduction to Microeconomics and Macroeconomics. Students, we have already studied the word economics in our 11th standard. Economics का क्या मतलब होता है students? Economics is the study of human behavior. How does a human react? वह कैसे behave करता है in ordinary course of life? A human will always try to fulfill all his unlimited wishes, but with limited resources or limited means. So हमने ये चीज ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है. So अब हम जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, दैट इज what is exactly microeconomics and macroeconomics. The economics has been classified into two main topics, into two main branches, that is microeconomics and macroeconomics. The word micro is derived from the Greek word micros. और micros का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? Micros का मतलब होता है एकदम स्मॉल पार्ट और millionth पार्ट. अगर एक प्रोडक्ट के हम लोग मिलियन टुकड़े और फिर हर एक पार्ट को अगर स्टडी करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज माइक्रो स्टडी. ओके, सो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे स्मॉल, वेरी स्मॉल. एंड द नेक्स्ट टर्म इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो is derived from the word macros, again a Greek word macros, which means large. Means जब हम entire economy को एक साथ में study करेंगे, that will be called as macroeconomics. And when we are studying about a single individual thing, it will be called as microeconomics. And this two term is given to us by a Norwegian economist, Ragnar Frisch. So meaning of microeconomics, students, microeconomics का क्या मतलब होता है? Microeconomics का मतलब होता है it is the study of not an entire economy. पूरी इकोनॉमी को एक साथ में स्टडी नहीं करेंगे, but just a particular thing of a product. Okay, पूरा नहीं स्टडी करेंगे, but it is the study of economic behavior and action of individual consumer, individual producer, individual commodity. कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल चीजें रहेगी, उन सबको हम लाइन वाइज स्टडी करेंगे, बट पूरे के पूरे इकोनॉमी को एक साथ में स्टडी नहीं करेंगे. दैट इज व्हाट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज. ओके, समझो क्लासरूम के अंदर 100 बच्चे बैठे हैं, तो 100 बच्चों को एक साथ में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. लाइन वाइज एक बच्चों की टेस्ट लेंगे. एक बच्चे को आगे बुलाएंगे, उसकी ओरल टेस्ट लेंगे, सेकंड बच्चों की ओरल की टेस्ट लेंगे. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई कर रहा हूं. मैं इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी कर रहा हूं, एंटायर पूरे क्लास को एक साथ में नहीं पूछ रहा हूं या नहीं टेस्ट ले रहा हूं. Okay, so what is the definition of microeconomics? According to Professor Maurice Dobb, microeconomics is in fact a microscopic study of the economy. मतलब हम क्या करेंगे? हम माइक्रोस्कोप लेके बैठेंगे और हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे प्रॉपर्ली. One more definition, according to Professor A.P. Lerner, उन्होंने तो क्या बताया है कि माइक्रोइकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? मतलब तुम एक माइक्रोस्कोप लेके बैठो एंड जिस तरह से बॉडी के अंदर मिलियन सेल्स होते हैं एंड यू कैन स्टडी ईच सेल लाइन वाइज लाइन, उसी तरह से पूरे इकोनॉमी के अंदर देयर आर मिलियंस एंड करोड्स ऑफ पीपल. ओके, सो आपको इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल हाउस होल्ड को स्टडी करना है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को स्टडी करो, बिकॉज पूरे के पूरे इकोनॉमी के अंदर ये सारे छोटे पार्ट है जिसको हम इंडिविजुअली पढ़ाई करेंगे. एंड दिस स्टडी ऑफ इंडिविजुअल थिंग्स इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स. So the next thing that we're going to study is the scope of microeconomics. तो scope का मतलब क्या होता है? Microeconomics total कहाँ फैला हुआ है. So following is a chart that will going to help you to understand the scope of microeconomics. Total microeconomics के 3 scope है. First is theory of product pricing, second is theory of factor pricing, and third is theory of economic welfare. So starting with the first one, theory of product pricing. Students, हमने previous chapter में already पढ़ा हुआ है that प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन होता है. एंड नेक्स्ट इज प्राइस और सप्लाई का रिलेशन कैसा होता है? डायरेक्ट होता है. ओके, और इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है. सो हमें क्या करना है यहाँ पर? कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे डिसाइड होगी? तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. जहां डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम होगा, वहां पर प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड होती है. तो जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मार्केट के अंदर प्राइस किसी प्रोडक्ट का बहुत हाई है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? डिमांड बहुत कम होगी और सप्लाई ज्यादा होगा. इमेजिन करो
बहुत कम डिमांड है और सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो कोई मतलब होगा स्टूडेंट्स, कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा। एंड सपोजिंग फॉर एग्जांपल किसी चीज की प्राइस बहुत कम होगी तो उसकी डिमांड कैसे होगी, बहुत ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगा। मार्केट में सप्लाई नहीं होगा, खरीदने वाले तो बहुत सारे लोग हैं बट कोई खरीद बट सप्लाई नहीं होगा तो उसका भी कोई मतलब नहीं होगा। दैट इज व्हाई वी नीड टू फाइंड आउट अ वे जहां डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड और सप्लाई जहां इक्विलिब्रियम होगा वहां पे हम क्या डिसाइड करते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं। और ये जो प्राइस डिसाइड करना होता है वो किसमें इन्वॉल्व होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होता है। सो दैट इज व्हाई थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग फर्स्ट इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। ओके, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? देयर आर इन ऑल 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन से 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? फर्स्ट इज लैंड, सेकेंड इज लेबर, थर्ड इज कैपिटल एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर। सो इन सारे ये जब सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक साथ में आएंगे तो अब क्या होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी टेक्स प्लेस एंड दैट इज व्हाई इन सबके प्रोडक्शन के लिए इनको हमें क्या देना होगा, रिवॉर्ड देना होगा। तो टेल मी, लैंड के लिए हम लोग क्या पे करेंगे, लैंड के लिए हम लोग पे करेंगे रेंट। लेबर के लिए हम लोग क्या पे करेंगे, लेबर को हम पे करेंगे वेजेस। और कैपिटल पे हम क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट चुकाएंगे। कैपिटल अगर होगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाएंगे। एंड फाइनली जो बचा हुआ प्रॉफिट रहेगा वो कौन लेके जाएगा, एंटरप्रेन्योर लेके जाएगा। सो ऑल द प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज आल्सो डिसाइडेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड गोइंग विद द थर्ड वन स्टूडेंट्स, थर्ड वन था थियोरी ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज ऑल रिलेटेड अबाउट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज को अलोकेट करो, मतलब गैदर करो। हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो जब हम इस रिसोर्सेज को गैदर करके एकदम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक वेलफेयर होगा कंट्री के अंदर। सो इकोनॉमिक वेलफेयर टोटल 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। हमें जितने भी रिसोर्सेज मिले हैं उनसे से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, जरा भी वेस्टेज नहीं करना है। दैट इज आवर फर्स्ट, दैट इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। सेकेंड कौन सा है स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। सारे गुड्स एक बार प्रोड्यूस हो गए हैं, उसके बाद गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद उन्हें क्या करना है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। लोगों तक वो गुड्स पहुंचने चाहिए, वो गुड्स कंज्यूम होने चाहिए, लोगों को उससे यूटिलिटी मिलनी चाहिए। अगर समझो फॉर एग्जांपल सारे के सारे मैंगोज रत्नागिरी में ग्रो हो गए लेकिन वो लोगों तक पहुंचे ही नहीं, वही पड़े पड़े बिगड़ गए, खराब हो गए, ओके, तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा वेस्टेज हो जाएगा। और वही वेस्टेज हमें नहीं करना है। देयर शुड बी एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोग उसे कंज्यूम करने चाहिए। सो उसको बोलते हैं एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। एंड गोइंग विद द थर्ड वन, दैट इज ओवरऑल इकोनॉमी एफिशिएंसी। इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय पीपल। वही गुड्स ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो जो लोगों को चाहिए, जिसकी लोगों को जरूरत हो। ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज मोस्टली कन्फाइंड विद प्राइस थियरी और अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो अच्छे से होना चाहिए। ऑल द मेजर टॉपिक्स, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, कंट्री के अंदर पॉवर्टी क्या हो रहा है, ओके, वो सारी चीजें, फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है, वो सारी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं आएगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स ओनली डील्स विद ऑल द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? फर्स्ट वन, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है स्टूडेंट्स? इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स। सो एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को हम स्टडी करेंगे। इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, हम सारी चीज को स्टडी करेंगे वन बाय वन, बट ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। हम पूरे एंटायर इकोनॉमी को एक साथ में स्टडी नहीं करेंगे। सेकेंड इज प्राइस थियोरी। अभी हमने जस्ट देखा था द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा है, स्कोप किसमें था, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो सारे प्राइसिंग को कहां फाइंड आउट करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। एंड दैट इज व्हाई इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइस थियोरी, ऐसा कहा गया है। सो थर्ड वन, पार्शियल इक्विलिब्रियम। ओके, सो इक्विलिब्रियम क्या होता है, द बैलेंस बिटवीन टू इकोनॉमिक यूनिट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या एनालाइज करता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट।
हर एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड दैट इज व्हाई इसको हम इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते, इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या डील करता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम से डील करता है, बिकॉज इट फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। नेक्स्ट इज फोर्थ वन, बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions। सो सर्टेन assumptions हम कैरी करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। द फर्स्ट assumption इज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। हमने देखा था सप्लाई के अंदर, डिमांड के अंदर हमने देखा था, हमने प्राइस और डिमांड को एनालाइज किया था, हमने प्राइस और सप्लाई को एनालाइज किया था, हमने प्राइस और यूटिलिटी को एनालाइज किया था, और कहा था बाकी अदर थिंग्स रिमेन इक्वल। सो हम ये assumption के साथ लेके चले गए थे। दिस assumption is called as ceteris paribus assumption। When I say other things remain constant, इसको हम क्या बोलेंगे, ceteris paribus assumption बोलते हैं, और इस assumption को हम किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लेके चलते हैं। और कौन से assumption थे, सेकेंड assumption हमने लिखा था laissez faire। सो laissez faire का मतलब क्या होता है, whenever there is no government intervention। हमने ऐसा अज्यूम किया है कि हमारे बिजनेस मॉडल के अंदर गवर्नमेंट जरा भी इंटरफियर नहीं करेगी। फुल कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का क्या मतलब होता है, that all the private parties can come and do trade or production and can they easily do business without any government intervention। और हमने क्या अज्यूम किया था, कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट, पूरे कंट्री के अंदर पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट सिस्टम एकदम सिस्टमैटिक है, कोई भी रोजगार, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है जरा भी। सो ये सारे assumptions के साथ हम लोग चले थे किसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, टू मेक द लॉ अ लिटिल सिंपलर। लॉ को थोड़ा आसान बना के हमने सब assumptions लिए थे, रियल लाइफ में सब कुछ प्रैक्टिकल नहीं है। दैट इज व्हाई वन ऑफ द फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions। फिफ्थ वन, स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, पूरे के पूरे एप्पल को एक साथ में स्टडी नहीं करेगा, उसको स्लाइस करेगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े करेगा। स्लाइसिंग मेथड मींस एंटायर इकोनॉमी को छोटे 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 टुकड़े में स्लाइस करो, एंड देन हम इंडिविजुअली हर एक स्लाइस को स्टडी करेंगे, बट पूरे के पूरे एप्पल को एक साथ में नहीं करेंगे। सिमिलरली वी विल बी स्टडीइंग वन ट्री एट अ टाइम बट नॉट द एंटायर फॉरेस्ट एट द सेम टाइम। सो दिस इज कॉल्ड एज स्लाइसिंग मेथड। सिक्स्थ वन, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनल प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, whenever you get to know the difference, the change by adding an extra unit, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करने से कितना डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने 10 मैंगो खा लिए थे तो मुझे 70 क्या मिला था, टोटल 70 यूटिलिटी मिली थी। जब 11th मैंगो खाया तो मेरी यूटिलिटी क्या हो गई, 72, मतलब सिर्फ दो ही यूटिलिटी बढ़ी। तो द चेंज इन द यूटिलिटी by adding an extra unit, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करने से कितने यूटिलिटी में चेंज आया, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करने से कितने प्राइस में चेंज हुआ, कितने डिमांड में चेंज हुआ, कितने सप्लाई में चेंज हुआ। सो बाय एडिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट यू गेट टू नो द डिफरेंस इन द इकोनॉमिक यूनिट। तो वो हमें पता चलता है किसमें, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल में। एंड दिस मार्जिनल प्रिंसिपल इज यूज्ड इन मेनी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए हमें मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल यूज करना होता है। हमें और आगे प्रोडक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आगे और सप्लाई के लिए माल निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। घर के अंदर मम्मी सोचती है कि अगर और हमें कोई भी प्रोडक्ट घर पे स्टोर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो जब एक्स्ट्रा यूनिट इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके एक्स्ट्रा इकोनॉमिक यूनिट पे क्या फर्क पड़ेगा, वो सारी चीज हमें पता चलता है मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल के थ्रू। सेवेंथ वन, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज किया है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, और कौन सा था, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ये सारे अलग अलग कॉम्पिटिशन को हमने क्या किया है, एनालाइज किया है, स्टडी किया है फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाले चैप्टर में, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड फाइनली 8.1, लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप क्यों कहा गया, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर ही करता है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट ही करता है। जो मेजर नेशनल प्रॉब्लम है, नेशनल प्रॉब्लम जैसे कि पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, ओके, भाव बढ़ जाना, भाव कम हो जाना, और कौन से बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ऐसी जो मेजर प्रॉब्लम्स है कंट्री के अंदर, वो सारे प्रॉब्लम्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स डील ही नहीं करता और ना ही इसको सॉल्व करता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिमिटेड स्कोप।
माइक्रो इकोनॉमिक्स का कैसा है, इट हैज वेरी लिमिटेड स्कोप. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट कहा गया है, ओके किस किस को बेनिफिट होने वाला है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो हम देखने वाले हैं. द फर्स्ट थिंग इज प्राइस डिटर्मिनेशन. सो ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स विल हेल्प यू टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसे होता है, द कंबाइंड फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं. सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और उनको जो प्राइसिंग होती है, उनको जो रिवॉर्ड होते हैं, लैंड को क्या मिलेगा, लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा, कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, एंड फाइनली एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा. तो ये सारी चीजें डिटरमाइन कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है. सो इट हेल्प्स अस इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट. सेकंड इज फ्री मार्केट इकोनॉमी. सो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है दैट हाउ द वर्किंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी टेक्स प्लेस. सो फ्री मार्केट इकोनॉमी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब एक ऐसी जगह जहां एन इंडिविजुअल इज गोइंग टू डिसाइड, एक इंडिविजुअल डिसीजन लेगा. क्या डिसीजन लेगा, जैसे हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट आर द थिंग्स दैट ही नीड्स टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस. वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सपोजिंग इफ आई एम अ फार्मर एंड आई हैव अ लैंड, तो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफियरेंस. ओके, गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगा, मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मेरी जमीन के ऊपर मैं कौन से प्रोडक्ट ग्रो करूंगा, कैसे ग्रो करूंगा, कितना ग्रो करूंगा, ये सारे डिसीजंस मैं खुद लूंगा. थर्ड इज फॉरेन ट्रेड. ओके, सो फॉरेन ट्रेड के बदले हर एक कंट्री के अंदर फॉरेन ट्रेड के बदले कितने गेन्स हो रहे हैं. ओके, मार्केट, अगर दो कंट्री के अंदर जो फॉरेन करेंसी रेट्स होते हैं, उस करेंसी रेट से कंट्री के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें हमें फॉरेन ट्रेड, ये सारी चीजें हमें कहां पता चलती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पता चलती है. टैरिफ रेट्स जो होते हैं, जो टैक्स रिलेटेड रेट्स होते हैं, वो टैक्स का भी फॉरेन ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, और वो इंपैक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, वी गेट टू नो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. स्टूडेंट्स देखो, इकोनॉमी जो सिचुएशन है कंट्री के अंदर, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, इज सच अ ह्यूज कंट्री विद सो मेनी पीपल, सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है. बट इकोनॉमिस्ट ने क्या किया है, इकोनॉमिस्ट ने ये पूरे इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ा है और हमारे लिए नए कंसेप्ट बताए, कंसेप्ट के साथ डायग्राम्स बनाए, डायग्राम्स के साथ टर्मिनोलॉजीज, मतलब सारे वर्ड्स, वोकैबुलरीज यूज की है, ऐसे डिफरेंट तरीके यूज किए हमें इस इकोनॉमी को समझाने के लिए, पूरी इकोनॉमी को समझाने के लिए. एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज, बड़े बड़े इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं वो एक आसान भाषा में बताया, इकोनॉमिक मॉडल बिल्ड करके. जैसे जो हमारा मॉडल बिल्ड क्या है, डिमांड एनालिसिस, जो सप्लाई एनालिसिस है, जो यूटिलिटी एनालिसिस है, ये सारे इकोनॉमिक मॉडल्स है जो बिल्ड किए हैं, कंसेप्ट्स बिल्ड किए, किसके लिए, हमारे लिए, सो दैट हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को आसान भाषा में समझ सके. नेक्स्ट इज बिजनेस डिसीजंस. ओके, बिजनेस के अंदर, ओके, द एंटरप्रेन्योर्स, द बिजनेसमैन, बिजनेस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, ओके, मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करे, आउटपुट को कैसे मैक्सिमाइज करे, हमारे अंदर प्राइस को कैसे डिटरमाइन करे, कोई भी प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसे करे, ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए एक बिजनेसमैन क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को फॉलो करता है. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई वांटेड टू स्टार्ट विजडम, स्टूडेंट्स मैंने मार्केट के अंदर स्टडी की, दैट देयर इज लैक ऑफ गुड कॉमर्स क्लासेस. ओके, तो मैंने सोचा मैं भी एक कॉमर्स क्लासेस शुरू करूंगा और मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से पढ़ाऊंगा. ओके, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिमांड इन द मार्केट, एंड दैट इज व्हाई डिमांड होने के कारण मैंने अपनी क्लासेस शुरू करके सप्लाई दिया. तो मैंने भी क्या किया, जब मुझे बिजनेस शुरू करना था, मैंने इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी किया था, मैंने इंडिविजुअल लोगों को पूछा था, एंड देन आई टुक द डिसीजन ऑफ स्टार्टिंग माय ओन बिजनेस. सो मूविंग फॉरवर्ड टू 6th one स्टूडेंट्स, यूजफुल टू गवर्नमेंट. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इट इज ऑल्सो यूजफुल टू गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट को जब भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं रिलेटेड टू टैक्सेशन, गवर्नमेंट भी माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करता है. गवर्नमेंट क्या करेगा, जो एकदम लग्जरियस गुड्स होते हैं, एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं, उसके ऊपर हाई टैक्स लगाएगा, बिकॉज उसको सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते हैं. और जो बेसिक नेसेसिटी गुड्स होते हैं उसके ऊपर लो टैक्स होते हैं, बिकॉज उसको गरीब लोग भी खरीदते हैं. जो पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सपेंस होते हैं, प्राइस पॉलिसी डिसाइड करनी होती है, उन सब में गवर्नमेंट ऑल्सो यूज माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड दिस पॉलिसी विल श्योरली हेल्प गवर्नमेंट टू अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव. कौन सा ऑब्जेक्टिव, ऑफ
एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एकदम एफिशिएंटली सारे रिसोर्सेज को अलोकेट करो एंड मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर होना चाहिए कंट्री के अंदर. एंड फाइनली स्टूडेंट्स, बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर इकोनॉमिक्स हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स ही बताएगा. व्हाट आर द बेस्ट रिजल्ट्स दैट कैन बी ऑब्टेन, कैसे जब हम बेस्ट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे और उसको सुपर वे से यूटिलाइज करेंगे तो हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. और ये सब कहाँ हो रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हो रहा है. एंड दैट इज व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट फिनिश होता हुआ. नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे नाइसली. सो थैंक यू सो मच, बाय.